जय हिंद दोस्तों, वेलकम in our YouTube channel Shaurya CAPFSC. See what a great quote of our great personality, of our great freedom fighter gave us. A lack of education leads to lack of wisdom, which leads to lack of moral, which leads to lack of progress, which leads to the oppression of lower classes. See what state of the society one lack of education can cause. Such a great statement given by the great personality. I have not given a name of that personality. You have to answer. So if you know the answer, who was that personality gave us such a great statement, please answer in the comment section. This statement shows the lack of education, impact of the lack of education on the society. So please, friends, you can use this quote in your essay, in your argument, anywhere you can use it whenever the question comes on education. So on the basis of your request, many of the candidates have a doubt that how to improve our English for the CAPF AC paper 2 mainly. Friends, honestly speaking, even I can't speak fluently the English language, as you can observe the things. Uh, Basically, I also belong to the Marathi medium in my primary school. So after that, I got then admission in science faculty and then completed in engineering. So even my English is not so fluential. I also not I'm not I'm also not having that kind of vocabulary to express my all views, my all thinkings to you. सो फ्रेंड्स, डोंट बॉदर अबाउट इट. अब मैं थोड़ा हिंदी में भी बात करूँगा क्योंकि पूरा इंग्लिश बात करने में मुझे भी अभी दिक्कत होती है. तो ये बताने की ज़रूरत यही है कि इंग्लिश इज़ नॉट ऑल. सो इंग्लिश सब कुछ नहीं है. इंग्लिश एक बस मीडियम है कि हमें एग्ज़ाम पास करनी है. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश इस एग्ज़ाम में है क्यों, उसका इम्पोर्टेंस क्या है. दोस्तों, as we are going to become an assistant commandant, which is the gazetted officer and which is considered as a super class 1 officer. So our responsibility is huge, and we know the mandate of our forces is to get engaged with international bodies also. If we see our border guarding forces like BSF, ITBP and SSB are continuously engaged with the counterparts. So we need English language to communicate with others. Similarly, as we know our country is very diverse. So in South India, Hindi language use of Hindi language is very minimal. So the English speaking population is there. So to maintain the social harmony, so English language can be this tool to maintain the harmony, to devote ourselves in our duty. So that's why we are having English language. So how to improve our English language, let's see. सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा जो मैंने प्रैक्टिकली की है और मैंने मेरी इंग्लिश वहाँ से सुधारी है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो दोस्तों, जब मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू किया था तब मुझे कन्फ्यूजन था कि मैं इंग्लिश मीडियम लूँ या हिंदी माध्यम या मराठी मीडियम लूँ. तो बिल्कुल कन्फ्यूजन था. 6 महीने मेरे तो उसमें ही बीत गए थे कि कौन सी लैंग्वेज, कौन से मीडियम में मुझे एग्ज़ाम देनी है. तो जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस से शुरू किया था तो वो आर्टिकल का जो पेज है, ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, ट्रस्ट मी, वो मुझे लगभग 6 से 7 घंटे मुझे लगते थे वो एक न्यूज़पेपर ख़त्म करने के लिए, वो आर्टिकल का पेज ख़त्म करने के लिए, नॉट अ होल न्यूज़पेपर. तो ये चीज़ होती है जब आप प्रैक्टिस करते हो और जब आपके मन में है कि नहीं यार करना ही है. तो मैं आपके लिए बहुत एक एग्जांपल हूँ कि यार मैंने किया है तो आप ऑफकोर्स आप भी कर सकते हो. तो मैंने कैसे किया था और यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, वही मैं आपके लिए प्रैक्टिकल जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वही बताने जा रहा हूँ. सो फर्स्ट पॉइंट, द मेक अ notebook or a diary. Why to make a notebook or diary? So we have to write daily 2 to 3 new words with its detailed meaning. So from how to get that new words from English newspaper. So दोस्तों, whatever the English newspaper you are reading, be it Hindu, be it English, Indian Express or Times of India. So when you read an article or a report, so try to pick
2 to 3 new words, write down in your diary with its definition or detailed meaning and how to use it. So you have to revise it frequently unless and until जब तक आपको वो वर्ड डाइजेस्ट होता नहीं है तब तक वो आपको रिवाइज करना है एंड उसका एप्लीकेशन करना है. अप्लाई इट इन योर प्रैक्टिस वेन एवर यू आर writing an essay, an argument or report, anything, or even you are thinking something or you are imagining something, so apply that word frequently. तो तभी आपका वो वर्ड फिक्स होगा और आपकी वोकेबलरी ऐसे ही बढ़ती जाएगी दोस्तों. सो सिंपल कैलकुलेशन है, इफ़ यू आर राइटिंग 3 वर्ड्स इन 30 days इट विल बिकम अ 90 वर्ड्स एंड 90 इंटू अगर हम 6 महीने के लिए प्रैक्टिस करते हैं सो यू विल हैव द 540 वर्ड्स विच आर मोर देन इनफ. 540 वर्ड्स में आप तो एक पूरी किताब लिख दोगे दोस्तों. इंग्लिश की इतनी वोकेबलरी है भी नहीं, मतलब बहुत है, पर हमें जितनी रिक्वायरमेंट है ये बहुत है हमारे लिए. तो अगर आप आज से शुरू करोगे 6 मंथ के लिए तो बहुत सही से आप हो जाएगा. अगर 2021 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो तो नो डाउट आप वो करते रहो, बिकॉज इम्प्रूविंग इंग्लिश एंड इट इज़ द प्रोग्रेसिव टास्क. सो ये इम्प्रूवमेंट टास्क है, तो ये आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो. पर मैं गारंटी देता हूँ कि 6 महीने में आप पूरी इंग्लिश आपकी वोकेबलरी वो स्ट्रांग होती जाएगी. सेकंड पार्ट है ग्रामर का. सो द ग्रामर सेक्शन वी हैव 25 marks we are having in our CAPF paper 2. So how to prepare the grammar. So as such दोस्तों I have not used the SP Bakshi sir's book, but when I read about it reviews, it's an excellent book for our grammar portion. So how to first learn the grammar and how to use our grammar in our reading and writing the English. So cover the static portion. Suppose you are covering the noun, pronoun, and you are covering the tenses. So whatever the element you are going to cover, make 50 sentences of each element. That is the examples. Suppose you are reading the present tense, simple present tense, then write down 50 sentences like आई ईट मैंगो. इट्स सिंपल. सो ऐसे 50 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और उसका एप्लीकेशन डेली लाइफ में आपको करना है. सेम वाई टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल. सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूज़पेपर पढ़ना फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज़ मोस्ट इसेंशियल part of our preparation. So why to read newspaper? So we get the most of the grammar's application at one place. Now here our motive is to improve the English. So how to improve our English from the newspaper? So we get the most of the grammar's application. For example, if you are reading an article, then you will get the simple tense also, simple past tense, simple present tense, then present continuous tense. Similarly, you will find the direct and indirect speech, active voice, passive voice, all things will be covered in an article. So therefore reading an article is very important for competitive exam. Next we will jump to the fifth point, how to read English newspaper. So friends, न्यूज़पेपर पढ़ने के तरीके होते और अलग अलग इंटेंशन होती है. जैसे कि मैंने कहा कि ग्रामर और वोकेबलरी के लिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे. सपोज़ आपने आर्टिकल पढ़ना शुरू किया, हिंदू का सपोज़ आप आर्टिकल लेते हो, तो उसमें बस फर्स्ट रीडिंग में आपको ये देखना है कि कौन से ग्रामर के एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ किए. फॉर एग्जांपल यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ किया है, कहाँ चेंज द वॉइस यूज़ किया है, कहाँ सिंपल टेंस यूज़ किया है, कहाँ एज सुन एज यूज़ किया हुआ है. सो ऐसे जो भी ग्रामर के पोर्शन है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया है. और वोकेबलरी, जैसे आप फर्स्ट रीडिंग करते हो तो अंडरलाइन द वर्ड्स विच आर अननोन, तो आपको उसका मीनिंग पता नहीं तो अंडरलाइन करो और वही आपके डायरी में नोट डाउन करो और उसके मीनिंग्स आप लिखते जाओ. तो ये एक हो गया वन मोटिव. सेकेंड है कि कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग. सो वी आर हैविंग एन एलिमेंट्स लाइक कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, प्रेसी राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग. So for the comprehension writing, after first reading, so write again that article and try to comprehend that article, what things that an writer going to express. So वो क्या कहना चाहते हैं. तो ये कॉम्प्रहेंशन हमें करना है. तो यही कॉम्प्रहेंशन हमें पेपर 2 में आता है दोस्तों 20 मार्क्स के लिए. तो अगर आप यहाँ से कॉम्प्रहेंशन वो आर्टिकल अच्छा करना सीखोगे तो आपके पेपर में आपको बिल्कुल टफ नहीं जाएगा कॉम्प्रहेंशन राइटिंग. सिमिलरली एक इंटेंशन होता है अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर, वो तो सिंपल सी बात है. नेक्स्ट है कि फॉर एग्जांपल ओपिनियन बिल्डिंग. सो व्हाइल राइटिंग एन आर्गुमेंट
आवर ओपिनियन इज़ वेरी क्रूशियल। सो ओपिनियन बिल्डिंग कहाँ से होती है, तो यही से होती है दोस्तों। एंड सिमिलरली फॉर इंटरव्यू पर्पज न्यूज़पेपर इज़ वेरी 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 इसेंशियल to build up our opinion. So similarly the précis writing, as I have said in previous videos of on précis writing. So what is the précis? So it is the summary of given article. So वो आर्टिकल आपने एक बार अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन किया, तो कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद हमें पता चलता है कि जो लेखक है उनको क्या कहना है, तो वही उनको जो क्या कहना है उसकी हमें समरी लिखनी है, दैट इज़ योर प्रेसी राइटिंग। तो वही आर्टिकल का कितना यूज़ है कि वहाँ से हम कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग भी कर रहे हैं, अपना अवेयरनेस भी हो रहा है, अपनी ओपिनियन बिल्डिंग भी हो रही है, और आप प्रेसी राइटिंग भी कर पा रहे हो। सो दोस्तों, फ्रॉम दिस न्यूज़ पेपर यू कैन improve your English. Now watch English news only. The fourth point, only word I have used here, because when we listen the English from another person, you will get that in what kind of way that person is speaking in English. So watch English news only. So friends, I am following the DD News channel and Rajya Sabha TV, which are the government channel, and so authentic news they are providing us. So watching English news, it's very important to improve your English speaking. दोस्तों कभी कभी होता है कि देखो, मैं अभी इंग्लिश बोलने में इतना अच्छा नहीं है मेरा, पर आई कैन राइट इंग्लिश विथ, मतलब अच्छे अच्छे ग्रामर से मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ। तो ये काफ़ी एस्पिरेंट्स के साथ होता है कि दे कैंट एक्सप्रेस देयर व्यूज़ इन इंग्लिश बट दे कैन राइट इंग्लिश इन बेटर मैनर। सो वो होता है, तो उसके लिए बोलने के लिए क्या करना है, देखो 6 पॉइंट थिंकिंग। सो हम मतलब अपने 24 घंटे में से तो मैं कहता हूँ कि आधा घंटा, आधा दिन हमारा पूरा सोचने में चला जाता है। सो वट एवर यू आर थिंकिंग, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश ओनली। कुछ भी हो आप थिंक कर रहे हो तो वो इंग्लिश में करो। इमेजिन कर रहे हो तो इमेजिनेशन भी होगा, वो इंग्लिश में ही करो। स्पीकिंग इंग्लिश में ही करनी है। और सोशल मीडिया पे हम बहुत एक्टिव रहते हैं। सो ऑन टेलीग्राम, ऑन व्हाट्सएप, ऑन फेसबुक एंड इंस्टा, मतलब जहाँ भी कहीं। सो वेन एवर you got an opportunity to write something on social media, please do write in English only, please, तभी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। सो ये थिंकिंग, इमेजिनेशन, स्पीकिंग और चैटिंग, ये है एप्लीकेशन पार्ट। सो वट एवर द ग्रामर यू आर रीडिंग, so use it, apply it in this in thinking, imagination, speaking and chatting. So friends, I think these are the points will be helpful to you to improve your English language. देखो दोस्तों, हम कोई अंग्रेज़ नहीं है, ना ही हमें इंग्लैंड में जाके हमें सर्विस करनी है। हमारा मोटिव वही है कि बस हमें सर्विस के लिए ही हमें इंग्लिश चाहिए। तो बस दिमाग में यही रखना है कि हमें इंग्लिश नहीं बनना है, हमें एक ऑफिसर बनना है। तो ऑफिसर के लिए इंग्लिश कैसे चाहिए वो हमें रिक्वायर्ड है। तो बस आशा करता हूँ कि ये मेरा जो स्ट्रेटेजी है आपको काम में आएगी। अगर आप सच्चे दिल से अगर प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, तो कोई भी चीज़ मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। देखो, मैंने जैसे कहा कि मुझे 6 घंटे लग रहे, तो अभी आज की सिचुएशन में मैं आधे से पौन घंटे में पूरा न्यूज़पेपर कवर कर लेता हूँ। तो ये प्रैक्टिस का ही है दोस्तों। प्रैक्टिस इज़ द ओनली की टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, नथिंग एल्स। सो डू प्रैक्टिस। ऑन टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, सो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप शौर्या CRPF AC। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, आपको कुछ क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आपको जो कुछ चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। दोस्तों, जैसे मैंने कि पेपर 2 की डेडिकेटेडली सीरीज़ लॉन्च की हुई है, आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस है वहाँ पे। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज़ रजिस्टर करो। वो टेस्ट सीरीज़ इस संडे से, मतलब 10 तारीख से लॉन्च हो रही है। 10 तारीख को पहला टेस्ट होगा, तो आप टेस्ट सीरीज़ शुरू करो। जो 2021 एग्ज़ाम के लिए जो एस्पिरेंट्स है उनको बहुत ज़रूरी है, वो करना ही है। तो वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं उसको इवेल्यूएट करूँगा। आपको प्रॉपर गाइडेंस भी होगा, फ़ोन पे फीडबैक भी दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करो। बहुत लिमिटेड कैंडिडेट्स में रखने वाला हूँ क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो वही आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्दी से करो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और इंग्लिश प्रैक्टिस अभी से
अभी से इसी मोमेंट से आप शुरू कर दो। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।